घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला, बंजारा की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। कांग्रेस ने जारी की सीडी और राज्यपाल ने वापस किया गुजरात लोकायुक्त बिल। और कोयला घोटाले पर संसद में पीएम की सफाई, कहा हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में जो सफाई दी, जो कोयला घोटाले की फाइलें जो गुम हो गई, गायब हो गई, खो गई या कहाँ गया किसी को पता नहीं, उस पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं। Let me assure this august house that the government has nothing to hide. The fact that more than 1,50,000 pages of documentation have already been handed over to the CBI clearly shows that our intention to facilitate the process of investigation cannot be called into question. Right from the days the Controller and Auditor General began its exercise of performance audit, the government has always provided its fullest cooperation to the CAG and later to the CBI. We will continue to do so. If the records in question are indeed found missing, the government will carry out a thorough investigation and ensure that the guilty are brought to book. और आपने प्रधानमंत्री के बयान को सुना जो संसद में दिया कि अगर ऐसा पाया जाता है कि ये फाइल नहीं मिल रहा है तो इसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी। सीताराम येचुरी ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। The Prime Minister got up in his intervention and offered virtually no explanation as to why the files are missing, who is responsible for them, which period do they pertain, and in the absence of any such explanation, and after making the statement of intervention, whatever it did, we had a most unusual spectacle of the Prime Minister walking out of the house in a brisk manner. It was the Prime Minister's walkout actually. So, and then we were all left without any answers. We were told at the beginning that the Coal Minister will reply to the clarifications, but he didn't either. I had raised 2 points pointedly to the Prime Minister and I was asking him for a pointed answer. Number one, I said, if these files are missing, if you do not know how they went missing, why is there not any complaint registered? Why is there no FIR filed? And why are you not investigating as to how these are missing? और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष उपनेता हैं राज्यसभा में। रविशंकर प्रसाद ने जो बातें कही और वेंकैया नायडू ने जो बातें कही वो भी आपको हम दिखाएंगे। और कपिल सिब्बल ने उसके जवाब में क्या कहा। देश एजिटेटेड है, मॉन्यूमेंटल स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एफआईआर कीजिए मिसिंग फाइल पर, सरकार को लेकिन अब श्री रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन पीएम इधर आए थे, एक दिन पीएम आए थे, उस दिन नहीं हो गया। पीएम का गलती नहीं है, नहीं चला, नॉट द फॉल्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो एक दिन सरकार को बताना चाहिए सर। ओके सर, आप देश की आवश्यकता समझे, हम चाहेंगे पीएम जवाब दे इस पर। बिल्कुल। और वेंकैया नायडू ने पत्रकारों से क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। कोयला घोटाला का संबंधित फाइल गायब हो गया, उसके बारे में सदन में आके दोनों सदनों में क्या हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया एफआईआर रजिस्टर करने के संदर्भ में, उसके बारे में क्या किया, इन सभी सवालों को समाधान देना ही है। ये बहुत जरूरी है। हम इस इश्यू को सदनों में उठाएंगे और सरकार से हम जवाब मांगेंगे।
सदन में उठाएंगे और जवाब मांगेंगे। कपिल सिब्बल ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। They want the Prime Minister to reply in their terms, and unless he satisfies what they are seeking, they will not allow the House to run. In other words, they don't want another point of view. The Prime Minister has said that we have given more than 1 lakh documents to the CBI, that we are fully cooperating. The matter is being monitored by the court. The matter is being investigated by the CBI. Whatever documents are available, we are giving. If there are any documents other than those, they will be located. If we ultimately found that they can't be located, then only the question of missing documents will arise, in which case we will lodge a report, in which case proceedings will move forward. But the opposition says no, the Prime Minister must admit that files are missing, and once the Prime Minister admits, he must also admit who is responsible. This is not the way Parliament should function, and this is not the way in which the House should function. I mean, the opposition has the right to ask questions, but the opposition has no right to get the answers that the opposition wants. आपने देखा प्रधानमंत्री के बयान और उस बयान पे विपक्ष का बवाल और सरकार का रुख। आपने तीनों चीजें देखी। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रदीप टमटा साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के अवनी रॉय साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गोविंद मिश्र जी हैं, सांसद हैं भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। गोविंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर विपक्ष प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? गोविंद जी। बड़ा स्पष्ट आपने अभी सब लोगों का सुना इधर जी। प्रधानमंत्री से लोग कोयला घोटाला, जिसको सीएजी ने स्पष्ट रूप से कहा था जी कि 1.86 लाख करोड़ का घपला है, भ्रष्टाचार है जी, और उस मसले के जो भी आवेदन पत्र थे जी, जिन लोगों ने खदान लेने के लिए आवेदन किया था, चाहे वो आवेदन पत्र हों और जो फाइलें हैं वो आज मिसिंग है। अभी सिब्बल साहब कह रहे थे कि विपक्ष जो पूछेगा तो हम काहे को बताएं। विपक्ष तो इस हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा है कि ये फाइलें क्यों गुम है, 257 फाइलें जो मिसिंग हैं ये क्यों हैं, आवेदन पत्र क्यों मिस हैं, और इसके कारण इस देश की लुटाई डकैती। लेकिन कांग्रेस जिस बेशर्मी के साथ इस देश के विपक्ष और लोकसभा, संसद और सीएजी से पेश आई है, इससे दुखद। लेकिन आप प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई, जो चीजें फाइल ढूंढी जा रही है, अगर वो नहीं मिलती है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री से बयान चाहिए, बयान के बाद आप संतुष्ट नहीं है और फिर संसद नहीं चल पाता है? कितने दिन में वो फाइलें मिलेंगी? कोई टीएल एक शब्द है, अगर आपने सुना हो, समय सीमा टीएल का टाइम लिमिट होती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रही है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देख रहे हैं? क्या नाक कट रही है? हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, आम आदमी, कि ये राजनीति में काम करने वाले लोग सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। सुप्रीम कोर्ट आज हावी हो रही है जी विधायिका पे। ये तमाम सारी क्या इनके कृत्यों के कारण पूरा राजनीति आज किस स्थिति में है? हम ये कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कराते फाइल नहीं मिल रही है। एफआईआर आपने दर्ज करवाया, जो आरोप लगाया सीएजी ने कि 1,86,000 करोड़, ये तो मिली भगत है, हमारा आरोप है। और अगर ये इतने पाप साफ हैं तो बताएं नहीं कि ये फाइलें कहां मिसिंग है, किसके जिम्मेदारी में था? क्योंकि प्रावधान है कि आवेदन आता है, कौन उसका वो होता है, और कोई नहीं चोरी किया है, डकैती पड़ गई थी तो ये एफआईआर करते। ऐसे डॉक्यूमेंट्स कहां रखे जाते हैं जी? कहीं सीलबंद लिफाफे में होते हैं, तमाम सारी बातें हैं। और इन बातों को इस तरीके से कह के और जो खिलवाड़ हो रहा है विपक्ष पे सीधा सीधा जो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि वो आपके अपने हिसाब से जवाब भी चाहते हैं, आप बयान भी चाहते हैं और जवाब भी चाहते हैं। हिसाब हम नहीं चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये डकैती कहां हुई, अगर हुई तो तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया, और एक समय सीमा बताओ कितने दिन तक हम करें, अपराधी को ढूंढो, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं हम
नहीं वो तलाश रहे हैं कि कौन अपराधी है, किसके कारण ये हुआ, तो आरोप उंगली किसके तरफ उठेगी? जी, आज वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, प्रशासनिक अमला उनके अंडर में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना। ठीक, बिल्कुल। प्रदीप जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। हो गया, नहीं विपक्ष आएगी फोटो चाहते तो हैं कि आप उनको ये जवाब दें। सरकार प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहे थे और उस जवाब में कोई पुख्ता जवाब जिसे कहते हैं, ठोस जवाब, वो नहीं कहते मिला कि आपने किसने किया, क्यों किया, कौन लोग हैं, गायब है तो कार्रवाई क्यों नहीं किया, आपने कुछ नहीं। आप एक भरोसा दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा उसका कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, विपक्ष वो चाहता है, जैसे माननीय कपिल सिब्बल जी ने भी कहा, विपक्ष वो चाहता है जो वो कहना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री कहे। देखिए, विपक्ष ने मांग की थी, सर्वप्रथम में कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई के द्वारा जांच हो रही है जी, है, और वो जांच आज कोर्ट में विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सबका भरोसा है, उसमें दूध का दूध पानी होगा, तो उसको हम पर इंतजार करना। एक चीज बात आ रही थी, कुछ फाइलें मिसिंग है। प्रधानमंत्री ने, विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने देश की संसद में, राज्यसभा में भी और उसके बाद लोकसभा में सरकार का एकदम दृष्टिकोण साफ रखा। हमारा कोई फाइलों को छिपाने का इरादा नहीं है। हमने जो सीएजी को सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सीएजी ने इंक्वायरी की, उसके बाद मामला प्रकाश में आया और उसके बाद सीबीआई को भी जितने 1 लाख डॉक्यूमेंट्स जो सारी चीजें वो दी जा चुकी है, सीबीआई मांग रही है। अगर लगता है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो सीबीआई के द्वारा मांगे गए हैं वो ट्रेस नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहाँ पर ट्रेस हुई, कौन मिसिंग है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसमें सीबीआई को सारा मामला हैंडओवर भी कर दिया जाएगा, जो सीबीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। इसलिए हमारी मंशा न कुछ छिपाने की है, न कुछ किसी को बचाने की है। और जब प्रधानमंत्री ने इतना साफ जवाब दे दिया था, तो उसके बाद ये परंपरा है सदन के अंदर, जब भी मंत्री को स्टेटमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट, उसमें कोई बहस वगैरह नहीं होती। आपने स्टेटमेंट मांगा था, उसके बाद आप नोटिस दे दिए। स्पीकर ने खुद कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्टि नहीं है, आप नोटिस दीजिए, हम उस पर चर्चा करा देंगे। लेकिन आप उस बहाने पूरी की पूरी संसद को न चलने देने, उसके कार्य को बाधित करें, ये तो कहीं से शोभा नहीं देता। और जो आपकी मांग थी उसको आकर के प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में, जबकि पहले तय हुआ था कि कोयला मंत्री बयान देंगे और प्रधानमंत्री इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने प्रतिपक्ष की पुरानी मांग को कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें, प्रधानमंत्री ने खुद दोनों सदन में आकर के सारी स्थिति को साफ किया और साफ किया कि हमारा कोई इरादा नहीं है। जो फाइल मांगी, अगर कोई फाइल जो सीबीआई के द्वारा मांगी गई होगी, अगर वो फाइल मिसिंग होगी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी, दर्ज भी होगी और इवन सीबीआई को सौंप भी दिया जाएगा। तो इससे ज्यादा विपक्ष क्या जानना चाहते हैं? दूसरा ये चीज थी, अगर विपक्ष ये चीज है कि विपक्ष अगर प्रधानमंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं थी तो विधिवत वो हाउस में कहते स्पीकर को या राज्यसभा में चेयरमैन को नोटिस भेजे और उस पर डिस्कशन हो जाए, बहस हो जाए वहां पर उसमें। तो आज आप विपक्ष फेयर नहीं है, आप कह रहे हैं विपक्ष फेयर नहीं है। मुझे लगता नहीं कि विपक्ष जो संसदीय राजनीति की जो हमारी मान्य परंपरा है उनका पालन कर रहा है। वो सिर्फ यही जो माननीय कपिल सिब्बल है कि अपने हिसाब से जो चाहता है। दादा से जानते हैं, दादा आखिर विपक्ष क्यों जो तमाम संसदीय मर्यादाएं हैं उनका ध्यान नहीं रख रही है? प्रधानमंत्री को आप घेरते हैं, प्रधानमंत्री से आप जवाब चाहते हैं, जवाब देते हैं तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट होने के नहीं होने के बाद भी आप कई सारे सवाल पूछते हैं। देखिए, संसदीय मर्यादा के बाद हम सभी कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं, सरकार भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल पिछले कई सालों से संसद की मर्यादा को हानि हो रहा है और संसद की कार्रवाई में भी ठीक ढंग से कामकाज नहीं हो रही है। जैसा यही प्रधानमंत्री 2 दिन पहले सदन के अंदर जो भाषा किया है, असंसदीय भाषा जो है, जिसके लिए उसको हटाना पड़ा, एक्सपेंस करना पड़ा, चोर है करके। अब चोर है जो कहा और उसके बाद जिस घटना को लेके हमारे देश की आर्थिक हालत खराब है और ऐसी एक जगह पर जहां पर जो रकम है कोयला है, ये बहुत भारी रकम है। 2G मामले में बहुत भारी रकम है, दूसरे में जितने भी है हम जोड़ ले तो हमारी आर्थिक हालत जब ऐसी पोजीशन में है, तो अगर हम इसको कहीं पे भी कुछ ला सकते थे, मेरे ख्याल उससे अच्छा होता था। खास करके फाइलें कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती हैं,
ये कस्टोडियन कोई नहीं हो। हमारे देश की संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो होता है वही हेड होता है जी। कहीं के लिए भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए हो, वो जिम्मेवार है, माने या ना माने जिम्मेवार उनकी है। घटना चक्र में अभी की जो है कि यहाँ बहुत सारे पार्टियों की एक साथ एकजुटता है और एकजुटता के साथ है, तो उसमें से ये कोई प्रधानमंत्री नहीं कह सकता ये उनकी है वो उनकी है, देखा जाएगा। दूसरी बात, यही घोटाले के साथ जुड़े हुए कुछ फाइलें मिल रही है। कुछ फाइलें अगर हम कहीं दिया होगा किसी डिपार्टमेंट को, तो फाइल मूवमेंट की एक रजिस्टर होता है। ये फाइल मूवमेंट के रजिस्टर में लिखा रहता है कौन सा फाइल कहाँ गया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा कहना ये है कि इसके साथ कोयला की ये घोटाले के साथ उन्हीं के नाम भी कहीं ना कहीं से आके पहुंचे हैं। हम जांच करेंगे, हम खोज पाएंगे, हम फिर तब देखेंगे, इतनी कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात है फाइलें कहाँ कैसे गई, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में गई, ये जरा मूवमेंट रजिस्टर देख लें। अगर मूवमेंट रजिस्टर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। दूसरी जगह जनता की मांग ये है, आपको दिखाना है कि हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पूरे चीज को अगर ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल जवाब दे के चले जाना और जवाब के बाद किसी को कोई सवाल ना करने देना, ये भी इस समय पर ऐसी स्थिति पर ठीक नहीं हुई। ये ठीक नहीं है। जो विधेयक जो है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाली है, तो मामला गई। करोड़ों रुपया की जो बातें आ रही है, कहीं से भी आ रहे हैं, हम किसको साझा देंगे किसको नहीं देंगे, कौन पकड़े जाएंगे। हाँ, पकड़ना है तो बाद में पता चला चूहा खा गई, हो गई, तो चूहा को तो साझा नहीं दे पाएंगे। कौन सा चूहा का ये पता भी नहीं चलेंगे। तो हमारे यहाँ आयरन चेस्ट जो है, लोहे के संदूक जो है, उसको भी व्हाइट हैंड खा जाता है। ये हमारे प्रशासन की सब ये बात पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईमानदार होने के नाते, उनके जो छवि है उसके नाते, जिसके लिए उन्होंने कहा विदेश की बात आई, कहाँ ऐसा होता है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस मामले में खुलसा करके कहना और जवाब में पूरी ऐसा हो कि हम भविष्य की बात ना करके अभी क्या कर रहा हूं इसी की जब बयान देते तो बेहतर। और विपक्ष के सामने भी जो है, क्यों ना हमारे हाथ में विपक्ष 2 दिन बाद चुनाव में जाना है, तो ऐसा कोई मसला किसी के हाथ में देना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं होगा जिसमें सरकार की पर्दाफाश हो, जिसमें किसी व्यक्ति की सम्मान में हानि हो। तो ऐसा हमारे देश की जो व्यवस्था, जनवादी व्यवस्था को और संसद को गौरव और मर्यादा के ध्यान रखते हुए हमें ऐसा चलना चाहिए। हम दोनों नहीं चल रहे हैं। एक पक्ष और विपक्ष से अलग हटके और हाँ, पुष्पेंद्र, निष्पक्षता से अगर देखें पूरे मामले को, देखिए एक बात साफ है कि इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को जिस तरह से कह रही है ना कि विपक्ष जो चाहता है वो जवाब नहीं दिया, और वो ये चाहते हैं कि जो जवाब उनकी ख्वाहिश है उस हिसाब से उनको जवाब देना चाहिए था। मैं विपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टी को सबको बाहर अगर रख भी दूं तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश की पार्टियों को छोड़ दीजिए आम आदमी को भरोसा रह गया है? ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 100 दिन में दावा किया था कि हम जो है गरीबी हटा देंगे। आज डॉलर महंगाई हटा देंगे, फिर बात डॉलर की हुई और आज आप जानते हैं डॉलर कहां है, महंगाई कहां है, भ्रष्टाचार कहां है। ये वही प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस कोल ब्लॉक की जो जांच चल रही है उसमें सीबीआई से कहा गया कि आप किसी भी सरकारी और किसी भी सरकार को ये फाइल ना दिखाएं और सीधे मेरे पास लाएं। ये प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है। इस प्रधानमंत्री के कार्यालय से, इस प्रधानमंत्री के अंदर काम करने वाले कानून मंत्री ने जिस मक्कारी और बेहयाई के साथ दिन के अकेले में डाका डाला और ड्राफ्ट को बदलवाया, और उसके बाद लगातार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये प्रधानमंत्री चुप बैठा रहा और उसने लगातार ये कहा नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक हुआ है, नहीं सब कुछ ठीक हुआ। और एक वक्त ऐसा आ गया कि प्रधानमंत्री पे इतना दबाव हुआ कि कांग्रेस अध्यक्षा को लगा कि साहब अब प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यालय है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, तो तत्काल उस कानून मंत्री का इस्तीफा लिया गया। तो जिस प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी विपक्ष और संसद के अलावा बात कर रहा हूं, इस देश के नागरिक की निगाह में यह हो कि वो जो भी बात आए बाएं शाएं झूठ बोलने के लिए बोलते हो, उस प्रधानमंत्री के आकर के संसद में यह कह देना हम कुछ छुपाएंगे नहीं। क्या नहीं छुपाया आपने?
आपकी पूरी सरकार पिछले 5 साल से चोरी और छुपाने के ऊपर ही चल रही है। लिहाजा इस प्रधानमंत्री ने अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वास खो दिया है। अगर आप यह बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती, मैं कहता हूं इस देश का कौन नागरिक मनमोहन सिंह के ऊपर इस बार को यकीन करने के लिए तैयार है कि यह महंगाई क्यों बढ़ी, यह भ्रष्टाचार क्यों हुआ, किस तरीके से एफडीआई में जिन लोगों को पैसा दिया कि उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ, किस तरीके से कानून मंत्री ने गड़बड़ की। आप इस तमाम घटना चक्र को देखें तो प्रधानमंत्री का यह कहना मुझे बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता। और विपक्ष हो कोई भी हो, वो कैसे यकीन कर लेगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फाइलें चोरी, उन्हीं के मंत्री ने कहा कि फाइलें चोरी हुई हैं। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे? प्रदीप जी देखिए, पुष्पेन जी बहस को दूसरी ओर भटका रहे हैं। देखिए, सवाल अगर आप 5 साल के, अभी 4 महीने पहले ही चुनाव हुए थे देश के अंदर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जब आप इन सवालों को सारी चीजें लेंगे, मैं इसलिए देखिए, बात ये थी, बात सिर्फ जिस बहस पर हम बहस करें, इस देश में भ्रष्टाचार का क्या हो रहा है, इस देश में गुजरात का हालात खुद देख रहे हैं कि गुजरात के एक ऑफिसर जिस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, खुद आप चीजों का राजनीतिकरण। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने, एक बार पुष्पेन जी, मैं आपकी बात पे कह रहा हूं, सुनी नहीं है या आप जानबूझ के उस बात को डिरेल करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका जवाब यह था, कपिल सिब्बल का जवाब यह था कि विपक्ष ये चाहता है कि जो ख्वाहिश है। एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दे, मामले की इंक्वायरी हो रही है, आप उस पर क्यों नहीं भरोसा रोक रहे हैं? मैंने उस देश के आम आदमी और पक्ष और विपक्ष में जो लोग हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि विपक्ष भरोसा क्यों नहीं कर रहा। आपने यह कहा, आपके मंत्री ने यह कहा कि विपक्ष की जो ख्वाहिश है, विपक्ष जो चाहता है, विपक्ष जैसा चाहता है वैसा प्रधानमंत्री जवाब दे, तब वो संतुष्ट होगा। मैंने कहा कि इस बात की बात नहीं है, प्रधानमंत्री इस अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, लिहाजा विपक्ष की बात छोड़ दिए। इस देश का एक आम आदमी उनके ऊपर यकीन नहीं करता। पिछले 4 चुनाव में 3 चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस का भरोसा व्यक्त किया है। चुनाव तो बहुत लोग जीत जाते हैं, चुनाव तो इस देश में डकैत, लुटेरे, बदमाश, बलात्कारी भी जीत जाते हैं, तो इससे उनका दादा कुछ कह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है, जो था पहले था, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं है कि वो संख्या ज्यादा लेके कभी सरकार बनाए। राय साहब, इक्का दुक्का जो जहां, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर प्रदीप टमटा साहब का यह कहना है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही तो इस देश में पुष्पेन जी सब चुनाव जीत जाते हैं। पुष्पेन जी, आप सुनिए, मैं आपकी इस बात तक है, आप उस चीजों को दूसरी चीजों से संदर्भ से जोड़े। प्रधानमंत्री मेरा आपसे कहना है कि आप सुनिए, पुष्पेन जी, कोयले घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में इंक्वायरी चल रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सीबीआई के। दूसरी चीज है, आज प्रधानमंत्री से एक मिनट, पुष्पेन जी, जो आपने सवाल उठाए थे, हमने यही कहा कि इस प्रधानमंत्री ने आकर के देश की दोनों सदनों में बयान दिया, अगर प्रतिपक्ष को या किसी को भरोसा नहीं है तो उसमें चलिए, आप उस पर प्रधानमंत्री को, संसद को, कमीशन को क्यों रोक रहे हैं? मेरी इतनी सी बात है कि ये फाइलें प्रधानमंत्री को या कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को नहीं देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही निगरानी में सीबीआई को देनी है। तो सीबीआई को देनी, तो इसीलिए ये सीबीआई को 1 लाख फाइलें दे चुके हैं, अभी यही तो सीबीआई की हमको नहीं मिली है, सीबीआई मांग रही है, ये चीजें हमको दी जानी चाहिए थी। जी, आपने भी कहा, कपिल सिब्बल ने कहा 1 लाख दे चुके हैं, ये 1 लाख की हिसाब कहां से मिले उनको? 257 उसके अंदर है कि नहीं? 257 अगर नहीं है तो 1 लाख जो है उन्हीं के लिए देखिए, आज अगर जो सीबीआई को वांटेड फाइल है, वही फाइलें प्रधानमंत्री ने कह दिया। प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो फाइलें नहीं मिलेगी उसकी इंक्वायरी होगी, जांच करके उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। असल में जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे और उस जमाने की फाइलें गोल है, ये तो बहुत देखिए गंभीर मसला है। और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता हूं जी, बड़ी सभ्यता के साथ जी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का जी। चुनाव जीत जाना अलग बात है, लेकिन इस देश की जनता एक जवाब चाहती है कि जब हमारी संवैधानिक संस्थाओं ने इनकी तरफ डकैती की बात की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि नहीं, संवैधानिक संस्था ही
दूसरे से मिल गई है, बीजेपी से मिल गई है, चुनाव लड़ने वाले, तो ये तमाम सारे जवाब जो इनके हैं ये असंतुलित है। तो महत्वपूर्ण बात है जो पुष्पेंद्र कह रहे थे, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि क्या ये पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि देश के लोग प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि जो वो जो गिना रहे हैं तमाम चीजों को, और जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप देखिए देश में जो कुछ चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो बीजेपी और लेफ्ट के लिए खास करके गोविंद जी आप और दादा कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे? अरे भाई आज जो डॉलर की समर्थन दे रहे हैं, आज जो लोग परेशान नहीं है, आज जो लोग परेशान नहीं है, देखिए आज जो डॉलर की स्थिति जी एक मिनट, खाद्य सुरक्षा बिल कल पास हुई है जी, और पिछले कई दिनों से सोनिया जी की और मनमोहन जी की फोटो लगा के इनके बारे में विज्ञापन जारी हो गई। जब तक पार्लियामेंट के अंदर बिल पास नहीं हुई, कैसे कांग्रेस हो या इन दोनों व्यक्ति की हो, ये विज्ञापन कैसे आ सकते हैं? देश में अभी भरपूर खड़ा है। हमारे वही देश जो 67 ईयर्स हो गया जो स्वराज मिली, हम 67 साल के बाद बोल रहे हैं कि हमारे अब कोई भूखा नहीं रहेगा जी, जो भी हो चुनाव जीत रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं या समर्थन कैसे लिया जा रहा है, जैसे भी अलग चीज है। आप बताओ, सरकार बना रहे हैं, कर्नाटक में सरकार वो कह रहे हैं, लोग मनमोहन जी को भी समर्थन, हिमाचल में सरकार बनाया, कर्नाटक में सरकार बनाया, लोग उत्तराखंड में सरकार बनाया, वो वही कह रहे हैं। जरा सुन तो लो जी, मनमोहन जी को समर्थन लोग नहीं दिया, मनमोहन जी को समर्थन लोग नहीं दिया है, बल्कि लोकसभा में जो चुन के आते जन समर्थन उनके पास होता है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ अगर माफिया जो है, जो बाहुबली है, जो दूसरा है, इनको भी चुना, वो भी जीत के आते वो भी कहने तो गोविंद जी वो बात ये देखिए, इस बात चर्चा ना हो तो नहीं करना चाहता दादा ने कहा कैसे प्रचार माध्यम है भाई, इस देश में है ऑर्डिनेंस के द्वारा फोर्स या बिल एक ऑर्डिनेंस, जब तक वो ऑर्डिनेंस जारी हो गया, ये कानून है, संसद हम देश के दादा ये कह रहे हैं कि फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन आपने प्रचार खूब कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, दादा तो ये कह रहे हैं ऑलरेडी उसको कानून की तरह ऑर्डिनेंस जारी हो गया, दादा ये कह रहे हैं कि अभी फायदा लोगों को नहीं मिला, संसद ने अभी कानून पास हो गया, इसलिए आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है। ये मेरा कहना है। एक लाइन बोलना चाहता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप जी ने बड़ी रवानगी के साथ ये कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर मैं या दूसरे या समाज या भारतीय जनता पार्टी या लेफ्ट राइट कितने भी आरोप लगा लें, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं और ये चुनाव जीत मेरी बात मैं वही आ रहा हूं कि बड़ा जन समर्थन है और चुनाव जीत रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल ना खड़ा किया जाए। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी गुजरात में मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं तो लोग कहते हैं वो कातिल है, चुनाव जीतना उसकी गारंटी नहीं है। तो यह परिभाषा वहां बदल जाती है, यहां नहीं बदलती है। फिर यह क्यों नहीं होता है कि अगर नरेंद्र मोदी 3 बार चुनाव जीत चुका है तो राज्य की जनता का 90% लोग उसके साथ है, लिहाजा दंगे में हाथ था या नहीं था, वहां नहीं बदलती है। लेकिन प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, इस पे मोहर देश लगाता है तो ये प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हैं जो खुद एक चुनाव नहीं लड़ा आज तक। अरे पुष्पेंद्र जी देखिए, दो चीजें अलग अलग है। एक बार गोविंद जी के पास चलना पड़ेगा। गोविंद जी, भाजपा कितना भी आरोप लगा ले, भाजपा कितना भी आप हंगामा कर लें, प्रदीप जी जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हो या व्यक्तिगत रूप से कह रहे हो या उनका जो विश्लेषण हो राजनेता के रूप में, वो कह रहे हैं जन समर्थन है, तो फिर बात परवाह किस बात की करें? वो आपकी परवाह क्यों करें? अब ये जो सर्वे कर लिया हो, इन्हें जो समर्थन दिख रहा हो, अगर डकैती चोरी और इससे ही है तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना है। गोविंद जी एक बात कहना चाहते, कोयला घोटाले की जांच फिर आप जी 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ जी, कोल का 1.86 लाख करोड़ जी, रेलवे में 10 करोड़ की घूस, सीबीआई में हस्तक्षेप सत्ता का, ये तमाम क्या दिख रहा है? केजी बेसिन में क्या है, ये इसरो में क्या, और ये करने के बाद इनको सपोर्ट मिलता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लोगों में आप 1,76,000 गिना ले, 1,86,000 गिना ले, आप रेल गेट कह लें, आप कोल गेट कह लें, आप कोई भी गेट खोल दें, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, लोग उनकी नीति को समर्थन कर रहे हैं, लोग उनके काम को समर्थन कर रहे हैं और उनको सत्ता में बिठा रहे हैं।
ये बैठे हम दिलीप जी देख पे हम अगर ये से ही बैठे तो हमें क्या कहना है? मैंने विपक्ष जो है, मैं एक बात ये विपक्ष को ये विधि विरुद्ध काम करके डकैती करने से रोकना है। इस देश की जो संपत्ति है आम आदमी की, उस संपत्ति से सुरक्षित करने के लिए मुझे कहना है। अब ये न माने, यही करने के बाद इनको वोट मिल रहा है, तो ये सोचे कि किस तरीके से। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, इस देश का आवाम जनता बहुत समझदार है। ऐसे घोटालेबाज को, भ्रष्टाचार वालों को कभी बख्शे की नहीं। कभी अंधों में काना राजा होता है, कभी बन गई होगी, लेकिन जो आज देश की परिस्थितियां है, जो इस तरीके की महंगाई है, जो इस तरीके का भ्रष्टाचार है, रुपए का निमोनन है, प्रधानमंत्री की साख हिंदुस्तान भर में नहीं गिरी, पूरे विश्व में गिरी है, जिसके कारण प्रदीप जी कुछ आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए सवाल है, ये तो आप अपने ये जनता पर विश्वास आप भी करने चाहिए, लोकतंत्र में हमको भी। 2004 हो, 2009 हो, 2004 जनता का जो फैसला होगा उस डेमोक्रेसी में सबको मान्य होगा, उसको एक साल उससे सवाल मैंने कहा था जो आपने कि जब कोयले घोटाले पर आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो रही है, तो जब तक वहां पर नया सरकार तो आप किसको बचा रहे हैं? खटखटा करें। बात तो यह है ना, देश की जनता का डेमोक्रेटिक फैसला अलग है और वो जनता हम पर समर्थन देगी, लेकिन सवाल कहां सरकार ने इस कोयले घोटाले के मामले में किसी को बचाने की या किसी को छुपाने की तथ्यों को फाइल गायब हुई है। अरे कहां बनाए हैं? देखिए जो हमने कहा आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भाई हमने सीजी को फाइल दी, हमने सीबीआई को फाइल दी है, लेकिन सीबीआई तो कहे तो सही कि ये जो फाइल है ये नहीं मिल रही है, उसके बाद उस पर इंक्वायरी होगी, उस पर इंक्वायरी होगी। तो किसी को भ्रष्टाचार को बचाने का क्या प्रश्न है? पुष्पेंद्र जी एक चीज है जी, लोकतांत्रिक फैसला ये रखा है, किसी को भ्रष्टाचार में बचाने के लिए हमको क्या अपनी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है? क्या वही तो प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री पर भरोसा तो 2014 में जनता बताएगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में क्यों नहीं भरोसा है? क्या आपको अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है? उस पर एक प्रश्न बताए पुष्पेंद्र जी, आपको बताइए, क्या एक मिनट आप सुन लीजिए, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या आपको सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर भरोसा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सीबीआई की जिन सबूतों की फाइलों की ये नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने देश की संसद में कहा है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी को, रिपोर्ट को सीबीआई खुद करेगी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में दोषों को सजा मिलेगी। क्या आपको इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है? सवाल है अरे 14 का फैसला तो उसको छोड़ दीजिए, अभी 8 महीने बहुत है। दादा एक लाइन जी, हमें ये सवाल हमें पूछना है और हमको भरोसा है कि नहीं, जरा आप बताएं कि आपने भरोसा रखा कि नहीं, जनता को भरोसा दिलाता कि नहीं है। हमने ऐसा देखा केस के जरिए से नरसिम्हा राव की देहांत हो गई, हमने देखा कि वो एलएम पाठक जो था उसका देहांत हो गई, केस चलते रहे। हमारे देश की क्या व्यवस्था कहां पर कैसे लेके गया है, ये भरोसा वाली बात छोड़िए। भरोसा वाली बात है तो जवाब जो सीधी देना चाहिए। नहीं मैं कौन किया नहीं पूछा ना पूछा, कार्रवाई किया, हमारे ऊपर कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत ना करे, नहीं प्रदीप भाई ने जो बात कही है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे, सीबीआई पे भरोसा नहीं, मैं कह रहा हूं है, लेकिन ये बात कहां प्रदीप जी भूल जाते हैं जब ये कहते हैं कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं करी जा रही। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ड्राफ्ट जो जमा करा था, जिसको मैं आपके कानून मंत्री ने छेड़खानी की थी, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल ने कमेंट नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस सरकार के बारे में। और जो शब्द कहे थे मुझसे बेहतर आपको याद होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर से भरोसे की बात कही थी। सीबीआई ने जो बात कही कि साहब सरकार ने मुझे बुला करके मुझे इसमें चेंज कराए गए हैं, जो दूसरा ड्राफ्ट उन्होंने जमा किया उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का याद कीजिए। मेरे भरोसे होने नहीं होने की, जिन इंस्टीट्यूशन की आप दुहाई दे रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय पे, उस इंस्टीट्यूशन ने इस सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। मैंने नहीं उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाए, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं उठाए। आप कह रहे हैं कि किसी को बचाने की जगह, आप बताएं कि लॉ मिनिस्टर को बचाने की कोशिश किसने की थी?
किसने की थी लॉ मिनिस्टर को बचाने की कोशिश, और कितने दिन तक चली वो कोशिश, और आखिर में आप जब फंस गए तो आपने कहा इस्तीफा लिया गया। और आपकी बेहयाई और आपकी पार्टी की बेहयाई ये है प्रदीप जी कि आपने उस लॉ मिनिस्टर को अभी हाल में स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देकर के जापान भेज दिया। ये कौन सी सजा है कि आपने कहा मंत्रालय छोड़ दो, यहां बैठ जाओ? ये किसको छुपाने की और बचाने की कोशिश जी? कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मिनिस्टर को किसी बात के लिए नहीं कहा है। आप ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे तो पूरी क्यों चले गए? जाना नहीं चाहिए था। नहीं फिर क्यों बने रहना चाहिए। नहीं है। बिल्कुल आपने कहा कि बचा नहीं रहे किसी को, मैंने कहा खुला बचा रहे थे। पुष्पेंद्र, प्रदीप जी से बिल्कुल हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। उससे पहले सिर्फ एक सवाल कि जो फाइलें गायब हुई हैं या नहीं मिल रही हैं, उस पर क्या प्रधानमंत्री को इतना तो भरोसा देना चाहिए था कि ये फाइलें जांच हो रही है कि कहां है या नहीं है? आप कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, आप कोई संख्या, आप कोई टाइमलाइन, जो गोविंद जी ने कहा कोई एक समय सीमा होती है, कुछ चीजें तो आप ऐसा कहते जिससे देश में या सांसदों को या आपके विपक्ष को भरोसा होता कि चलिए प्रधानमंत्री जी के इन बातों पे अभी ये कुछ समय की बात है, इतने समय में होना है, यकीन करें। आपने एक बात कही और उस बात की कोई समय सीमा नहीं है। कुछ दिन के बाद चुनाव होंगे, फिर चुनाव के बाद जब होगा तब देखा जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सीबीआई ने जिन जिन चीजों को मांगा है, डॉक्यूमेंट्स को मांगा है, उनको दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। जो अभी भी अगर नहीं मिलेंगे तो उनकी इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी करेगी। वही बात है गोविंद जी, अब कौन सी मिली है कौन सी नहीं मिल रही, सीबीआई ने रिक्वेस्ट भेजी है, फैसला करेगा, जनता फैसला करे। और हमें सरकार बनाने के लिए जब जरूरत होगा हम सीबीआई की फाइलें खुलवाएंगे, मायावती के खिलाफ हम खिलवा बंद करेंगे, मुलायम जी के खिलाफ, ऐसा जो चलता है। को जो है बदनामी जो किए हैं, जो हमारे देश की फाइल गायब हो जाए उसके लिए कमेटी बैठेगी। इस देश में 24 प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई है